In today's lecture, we will discuss about the linear and non-linear phases. To know the linearity of phases, first of all, we should know the magnitude phase representation of our Fourier transform. We can define our Fourier transform as continuous time Fourier transform, CT, FT, as well as discrete time Fourier transform, DT, FT. If our input is a continuous time system, means it is a continuous time Fourier transform. If our input is a discrete time, then it is a discrete time Fourier transform. We can define our Fourier transform in four ways. First one is rectangular form, where we have real part plus imaginary part, that is x plus jy. In second case, we can define it as a trigonometric form. In trigonometric form, we have r multiplied by cos theta plus j sin theta, where r is our amplitude. And in third form, we have polar form. In polar form, we can write r multiplied by angle theta. And in last fourth case, we can define our Fourier transform as in exponential form, that is r multiplied by e की power j theta, where r is our magnitude and e की power j theta is our angle of our system. So simply generally we define our continuous time Fourier system and discrete time Fourier system with the help of this exponential form. Suppose now we have x of j omega, हमें frequency domain signal given है, that is x of j omega for continuous time Fourier transform. We can write it in terms of magnitude and phase as, if we take absolute value of x of j omega, or simply we take mode of x of j omega, that is magnitude of our continuous time Fourier transform, and multiplied by e की power j theta omega, where this theta omega is equal to फेस ऑफ आवर सिस्टम. जो भी हमें सिस्टम गिवन है उसका हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? बाय टेकिंग मोड ऑफ आवर एक्स ऑफ जे ओमेगा. जो भी हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन होगा उसका हम मोड ले लें, दैट इज मैग्नीट्यूड. एंड जो भी हमें थीटा ओमेगा गिवन है, दैट इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ x of j omega, and we can say that it is angle of x of j omega, and we may treat it as a face of our system. जो भी मेरे पास सिस्टम गिवन होगा ये उसका फेस होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज एक्स ई की पावर जे ओमेगा. सिंपली चेक कर सकते हो, अगर सिंपल मेरे पास कॉन्टिन्यूस टाइम है तो एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा, बट अगर डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो मीन्स इट इज एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, विच विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ई की पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय फेस ई की पावर जे थीटा ओमेगा. अगेन x of e की पावर j omega mod is equal to magnitude of our system, and theta omega which will be equal to angle x of e की पावर j omega, that is face of our system. तो सिंपली कोई भी अगर हमें सिस्टम गिवन है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, एंड सेकंड उसका हमें फेस फाइंड आउट करना होगा. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मोड ले सकते हैं, और अगर हमें फेस निकालना है तो फेस इज बेसिकली एंगल ऑफ आवर एक्स ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ ई power j omega. So simply now, what is linear phase and non-linear phase? If the phase shift at frequency omega is linear function of omega, then there is a particularly straightforward interpretation of the effect in the time domain. Simply frequency response of continuous time system is, अगर हमें कोई भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम गिवन है तो उसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय टेकिंग एच ऑफ जे ओमेगा, कि हमें एच टी टाइम डोमेन में सिस्टम गिवन है, तो एच टी का मेरे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? दैट इज कैपिटल एच जे ओमेगा विच विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट. तो मेरे पास इस सिस्टम का जो गेन है दैट शुड बी यूनिट गेन. जो भी मेरे पास सिस्टम की गेन होगी वो मेरे पास यूनिटी गेन होनी चाहिए. मींस अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा.
विच विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। तो ये मेरे पास 1 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 होना चाहिए। एंड फेस मेरे पास लीनियर फेस के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, मेरे पास जो भी मेरा एंगल होगा, एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, इट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आवर एक्सपोनेंशियल टर्म। और एक्सपोनेंशियल टर्म का मेरे पास एंगल क्या है, दैट इज माइनस ओमेगा टी नॉट। तो मेरे पास गेन 1 होनी चाहिए, यूनिटी गेन होनी चाहिए, एंड एंगल मेरे पास अब क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा टी नॉट। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू आउटपुट y j omega divided by x of j omega. Hence we can say that it is equal to e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट। जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली मेरे पास क्या होता है, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपने सिग्नल को चेक कर रहे हैं, तो जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा सिस्टम का एच ऑफ जे ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू आउटपुट y in frequency domain j omega divided by x j omega input in my frequency domain, and it should be equal to e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। तो सिंपली अगर हमें अपना इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन शुड बी इक्वल टू input in frequency domain multiplied by exponential signal, that is e की पावर माइनस j omega naught t। नाउ बाय टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, तो हमारे पास जो y है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करने पे मुझे टाइम डोमेन में आउटपुट मिल जाएगी, दैट इज वाई टी। एंड वाई टी इज इक्वल टू नाउ वट, इट इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नोट। हम चेक कर सकते हैं जो मेरी आउटपुट आ रही है, दैट इज नाउ टाइम शिफ्ट वर्जन ऑफ आवर इनपुट। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपने सिग्नल को एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास यहाँ टाइम होगा, टाइम टी नॉट, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास टाइम डोमेन में मेरा आउटपुट सिग्नल शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका इफेक्ट हम चेक करें कि सपोज मेरे पास एक इनपुट सिग्नल गिवन है एक्स टी, जो कि मेरे पास 0 से स्टार्ट है। तो अगर हम इसके लिए आउटपुट वाई टी फाइंड आउट करें, तो आई टी में वाई टी मेरे पास क्या होगा, दैट इज टाइम शिफ्ट वर्जन ऑफ माई इनपुट। तो अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे पास वाई टी की, दैट इज टी नोट। जो भी मेरे पास टाइम शिफ्ट होगा टी नोट यहाँ पे गिवन होगा मेरे पास। सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो भी टी है हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, विद एन से। तो अब मेरे पास जो मेरा ट्रांसफर रिस्पॉन्स आ जाएगा, दैट इज एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा विच विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। तो मोड मेरे पास क्या होना चाहिए सिस्टम का, इट शुड बी इक्वल टू 1। मेरे पास यूनिटी गेन होना चाहिए, सिस्टम की गेन 1 रहनी चाहिए, मीन्स मोड ऑफ एच ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू 1। एंड जो मेरे पास एंगल आएगा अब एच ऑफ ई जे ओमेगा का, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन नॉट। जो भी मेरे पास एंगल होगा अब दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन नॉट। और बाय टेकिंग इट्स इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, दैट इज वाई ऑफ एन। नाउ अगेन इट इज इक्वल टू शिफ्टेड वर्जन ऑफ माई इनपुट, टाइम शिफ्ट हो गया मेरे पास एक्स एन माइनस एन नॉट। जो इनिशियल वैल्यू मेरे पास एन से इनपुट स्टार्ट था, आउटपुट मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट मेरे पास एन नोट से स्टार्ट हो जाएगा। तो नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज ग्रुप डिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू नो अबाउट आवर डिलेज इज ग्रुप डिले। अगर मेरे पास मोर देन वन फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है सिस्टम में, कि हम सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को अपने सिस्टम से पास नहीं करा रहे, हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अपने सिस्टम से पास करा रहे हैं, तो हर एक सीक्वेंसी का कुछ ना कुछ मेरे पास डिले होगा, फेज शिफ्ट मेरे पास प्रोवाइड करेंगी। तो फर्स्ट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है उसका फेज शिफ्ट, सेकंड फ्रीक्वेंसी का फेज शिफ्ट, थर्ड फ्रीक्वेंसी का फेज शिफ्ट, अगर ये सब मेरे पास कॉमन आते हैं, सेम आते हैं, तो मीन्स मेरे पास सेम ग्रुप डिले होगा। अगर ये सबके फेज डिले अलग अलग आ जाएं, तो मेरे पास जो फेज डिले आ रहा है दैट इज नॉन लीनियर। तो बेसिकली मुझे चेक करना होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी हम पास करा रहे हैं अपने सिस्टम से, उनका फेज सेम रहेगा, सेम फेज से सारी फ्रीक्वेंसी मेरे पास डिले होंगी, या अलग अलग फेज से मेरे पास सारी फ्रीक्वेंसी डिले होंगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली चेक करना होता है ग्रुप डिले ऑफ माई सिस्टम।
group delay tau g or simply tau, the group delay at each frequency equals the negative of slope of phase of that frequency. जब जिसका भी हम ग्रुप डिले निकाल रहे हैं उस वो क्या होना चाहिए, दैट इज अ नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फेज एट दैट फ्रीक्वेंसी, मींस टाउ ओमेगा फॉर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू नेगेटिव डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी ओमेगा ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा। तो सिंपली हम डिफरेंशिएशन निकाल लें अपने एच ऑफ जे ओमेगा का और उसको नेगेटिव स्लोप चेक कर लें तो हमारे पास टाउ जी ग्रुप डिले हमें मिल जाएगा। और वी कैन सी दैट for our discrete system that tau omega is equal to minus d of d omega multiplied by h e of j omega. Now look at some numericals based on this phase, linear phase and group delays. In first case हमें क्या करना है, we have the frequency response, हमें एक frequency response given है, the frequency response for a causal and LTI continuous time system is given as h of j omega which is equal to 1 minus j omega divided by 1 plus j omega. We have to calculate the magnitude and phase of frequency response, the group delay of the system and hence determine which of the following statement is true about it. हमें फर्स्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अपने सिस्टम का, देन वी हैव टू फाइंड फेस ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, देन हमें अपना ग्रुप डिले फाइंड आउट करना है टाउ ऑफ ओमेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें इन तीनों में से एक स्टेटमेंट चेक करने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होगी। टाउ ओमेगा इज लेस देन जीरो फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड टाउ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो फॉर ओमेगा ग्रेटर देन जीरो, टाउ ऑफ ओमेगा लेस देन जीरो फॉर ओमेगा ग्रेटर देन जीरो। तो हमें चेक करना है कि जब हम ओमेगा को ग्रेटर देन जीरो पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इनमें से ग्रुप डिले क्या होगा, ग्रुप डिले लेस देन जीरो होगा, ग्रुप डिले जीरो होगा, या फिर ग्रुप डिले ग्रेटर देन जीरो होगा। एक में ग्रेटर देन कर लेना यहाँ पे। तो नाउ टू सॉल्व दिस हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमें पता है कि जो हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में दैट इज एच ऑफ जे ओमेगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा। तो सिंपली अगर हम चेक करें कि कोई भी हमें सिस्टम गिवन है, ये हमें सिस्टम गिवन है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एच ऑफ जे ओमेगा, इसके पास मेरे पास इनपुट होगी एक्स ऑफ जे ओमेगा और आउटपुट होगी वाई ऑफ जे ओमेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और अगर हम सिंपली इसको टाइम डोमेन में लें तो एच ऑफ टी इज इक्वल टू वाई टी डिवाइडेड बाय एक्स टी। तो सिंपली ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है अपने एच ऑफ जे ओमेगा का। मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उसका रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन होगी, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर टोटल अंडर रूट। तो फर्स्ट अपर न्यूमरेटर से हम चेक करें, ऊपर में हमें क्या गिवन है, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट माइनस ओमेगा। तो सेम डिनोमिनेटर में भी हमें क्या गिवन है, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट प्लस ओमेगा। तो इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 1 स्क्वेयर प्लस माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर प्लस पॉजिटिव ओमेगा स्क्वेयर। सिंपली चेक कर सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वेयर भी क्या होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर। तो सिंपली दोनों मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा 1, मींस सिस्टम हैज गेन 1, इस सिस्टम की गेन 1 है। तो गेन 1 होने का मतलब क्या होगा, जो भी मेरे पास इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो सेम हमें आउटपुट मिलेगी। अगर इनपुट मेरे पास यहाँ 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय गेन 1, तो आउटपुट भी मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा। अगर यहाँ 5 मेरे पास इनपुट है, 5 मल्टीप्लाइड 1, आउटपुट भी मेरे पास 5 आएगी। तो जो भी मेरे पास इनपुट होगी एज इट इज मुझे आउटपुट पे मिलेगी। ये मेरा मतलब हुआ इस गेन 1 होने का, कि जो भी मेरे पास इस सिस्टम की गेन है दैट इज 1। तो मीन्स जो भी मेरे पास सिग्नल आएगा ये उसको एज इट इज फिल्टर आउट करके आउटपुट पे मुझे प्रोड्यूस कर देगा। नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड द फेस ऑफ आवर सिस्टम। तो फेस सिस्टम का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग एंगल ऑफ आवर एच ऑफ जे ओमेगा। जो भी मेरे पास रिजल्टेंट एंगल आएगा मेरे पास
वो मेरे पास फेस ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। सिंपली अब मेरे पास दो सिस्टम है यहाँ पे, फर्स्ट 1 माइनस जे ओमेगा, सेकेंड 1 प्लस जे ओमेगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि जब भी मेरे पास एंगल्स डिवाइड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है, दैट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब इस सिस्टम के लिए मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट का अगर हमें एंगल निकालना है दैट इज टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इस केस में इमेजिनरी मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा, और रियल पार्ट क्या है 1, और डिनोमिनेटर के लिए भी मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल पार्ट। तो डिनोमिनेटर के लिए मेरे पास इमेजिनरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ ओमेगा, एंड रियल पार्ट दैट इज 1। तो सिंपली इनका कंबाइन इफेक्ट मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ ओमेगा माइनस डिवाइडेड है एंगल तो माइनस आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। तो सिंपली हम इनको राइट अप कर सकते हैं इस टर्म में। तो वैल्यू पुट कर दें इमेजिनरी रियल की, टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ ओमेगा बाय 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा बाय 1। सिंपली टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा। तो सिंपली मेरे पास ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो दोनों को ऐड कर दें तो आवर रिजल्टेंट फेज क्या हो जाएगा सिस्टम का, दैट इज इक्वल टू माइनस टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रुप डिले ऑफ आवर सिस्टम। तो ग्रुप डिले हमें पता है कि क्या होता है कि जो भी हमें यहाँ पे एंगल गिवन है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लें और इसका स्लोप क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो हम ग्रुप डिले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली टाउ ओमेगा ग्रुप डिले इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ओमेगा एंगल एच ऑफ जे ओमेगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें दैट इज माइनस ऑफ डी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा विच विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। सेकेंड, अब हमें अपनी कंडीशन चेक करनी है कि इनमें से मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, कि ओमेगा की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 पुट करें तो टाउ ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा और लेस देन 0 आएगा। तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है। तो सिंपली हम ओमेगा को ग्रेटर देन 0 पुट करके देख लें। तो हम ओमेगा को ग्रेटर देन 0 पुट, यहाँ पे 1 पुट करके देख लें। तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो टाउ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जो भी हमारे पास यहाँ कंडीशन होगी इन विच टाउ ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, दैट विल बी आवर कंडीशन, जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। तो लास्ट सी को हम मान लें टाउ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, तो मीन्स ये वाली मेरे पास कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। नाउ इन आवर सेकेंड केस, second numerical, a continuous time causal and stable LTI system is described by the differential equation dy by dt plus 5 yt is equal to 2 of xt। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम गिवन है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम को किसके थ्रू डिस्क्राइब करें, बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, देन हमें आउटपुट गिवन है yt, और हमें करंट इनपुट गिवन है xt। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, करंट आउटपुट का एम्पलीट्यूड कितना है 5, और जो हमें एक प्रीवियस आउटपुट गिवन है dy by dt, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1। तो सिंपली हमें फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। हमें टाइम डोमेन सिग्नल गिवन है, उसका हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकालना है एच ऑफ जे ओमेगा। देन हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है अपने सिस्टम का, दैट इज एच ऑफ टी। then step response of our system s of t, then final value of our step response s of infinity, means t को हमने infinity पुट करना है। then value of t नॉट फॉर विच s of t नॉट, जो भी मेरा स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है उसमें हम एक t नॉट के ऊपर अपना वैल्यू फाइंड आउट करना है t नॉट की, फॉर दैट s of infinity मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अब इसका फाइनल एच ऑफ जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने के लिए हम क्या करें,
जो भी हमें गिवन सिग्नल है डी वाई टी बाई डी टी प्लस 5 YT प्लस 2 of x of t, सिंपली इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। फूरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास डेरिवेटिव डी वाई ऑफ डी टी का क्या आ जाना चाहिए, दैट इज जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ जे ओमेगा। जो भी मेरे पास वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वाई ऑफ ओमेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट कर दें। और कितना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना है हमारे पास, यहाँ पे डी डी वाई टी है तो 1 मेरे पास फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे ऑफ ओमेगा प्लस 5 YT का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सिंपली हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास किसी सिस्टम का क्या होता है, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो हम इसमें से वाई ऑफ जे ओमेगा को कॉमन कर लें तो मेरे पास क्या बचेगा, जे ओमेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 2 of x of j ओमेगा। तो हम सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय, दिस इज आवर आउटपुट वाई ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय इनपुट कर ले एक्स ऑफ जे ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज 2 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सिग्नल को। नाउ दैट इज आवर एच ऑफ जे ओमेगा, आवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। नाउ बाय टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जे ओमेगा, अगर हम इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच ऑफ टी मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम डोमेन में मिल जाएगा बाय टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फैक्टर। तो फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू एच ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस 5t ut। we know how to find Fourier transform of our inverse Fourier transform of our h of j omega. Now simply that is my in h of t in my time domain. Now we have to find the step response of our system. मेरे पास impulse response मुझे मिल गया h of t, तो इस impulse response से मुझे अपना step response find out करना है। तो step response is s of t which is equal to h of t, this impulse response of my system multiplied by input ut। अगर हम input अपनी स्टेप इनपुट लगा दें, यूनिट स्टेप इनपुट लगा दें अपने सिस्टम पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपनी हमें स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सिंपली कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी मल्टीप्लाइड बाई यू टी इज आवर स्टेप रिस्पॉन्स। तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हम इन दोनों का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। कन्वोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, अब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ multiplied by ut minus tau, one signal as it is and another signal time shifted version, integration with respect to d of omega। तो सिंपली हम h of t की वैल्यू पुट कर दें 2 e की पावर माइनस 5 टाउ d of tau मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड सिग्नल u टाउ u t माइनस टाउ d टाउ। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस 5t u t, दैट इज आवर स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आवर सिग्नल। जो भी हमें सिग्नल गिवन है और जो भी हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसका हमारे पास ये स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। नाउ सिंपली वी हैव टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ आवर स्टेप रिस्पॉन्स। तो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम t को रिप्लेस कर देंगे बाय इन्फिनिटी। जो भी मेरे पास यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स आया था इसमें हम t की जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो हम अब क्या ले रहे हैं, s ऑफ इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचिंग इन्फिनिटी s ऑफ t। जो भी हमने अभी स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया उसमें अपनी लिमिट को t को इन्फिनिटी पुट कर दें। तो सिंपली आफ्टर सॉल्विंग दिस फैक्टर हम यहाँ t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये एक्सपेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपली 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2/5। तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू दैट इज 2/5। इन आवर लास्ट पॉइंट वी हैव टू फाइंड t इज इक्वल टू t नॉट
हमें टी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें कंडीशन गिवन है एस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू 2/5 1 माइनस ई की पावर माइनस 5 टी नॉट। ये तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है कि जब हम टी को टी नॉट से रिप्लेस कर दें, और हमें जो स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है वो मेरे पास क्या है, दैट इज एस ऑफ टी नॉट विच इज इक्वल टू एस ऑफ इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई की 1 माइनस 1 बाय ई स्क्वेयर। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो मेरे पास एस ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू आई थी वो मेरे पास क्या आई थी 2/5। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें एस ऑफ इन्फिनिटी की 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस 2। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, फर्स्ट को और सेकंड को, तो हम चेक कर सकते हैं दोनों इक्वेशन मेरे पास सेम है। तो बट अब हमें सिर्फ वैल्यू चेक करने की, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं कि -5 टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो सिंपली हम इससे अपना टी नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 टी नॉट इज इक्वल टू 2 एंड टी नॉट इज इक्वल टू 2/5 सेकेंड। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मेरी कंडीशन गिवन है उसमें टी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज 2/5 सेकेंड। थैंक्स फॉर टुडे।